So today's chapter is all about being aware and alert, where and how we can be grateful for every little thing that whatever is coming in front of us. We have to be attentive to be expressing our gratitude. That is how the universe sends us the cues, because normally what as human beings, we are in the habit of, our energies, our thought process, our feelings are uh, tend they tend to drift towards negativity, as we have been discussing mostly. Kuch bhi aega aise to we either start worrying or start cribbing or start criticizing. All those kinds of emotions comes uh, comes in our mind. But how we can instead of letting our minds drift into the zone of negativity and surrender to these negative feelings, how we can convert our feelings into gratitude, and how we can convert those things uh, which are maybe giving us some challenges, or why something is, as they say, whatever your energy is within you, you are attracting the same energy. It is reflecting outside as a mirror. The outer world is reflecting, है ना? ये सब लोग एक बार थोड़ा ध्यान रखेंगे. Whenever you all are entering, please mute yourselves immediately, otherwise it creates disturbance. Okay, so whatever we are seeing outside, we have been discussing this so many times, no? Whatever we are seeing outside is a reflection of whatever our mental state is. So if we see, if we find someone not behaving appropriately, maybe it is a family member or a staff, or not working properly, or maybe that person is lazy or short tempered. So why that behavior is visible to me outwardly is because that is somewhere inside me also, on which I need to work. I need to first take care of whether I am lazy, I'm behaving lazy. That's why this laziness is visible to me. So that is where our attention, from shifting our attention from the negativity, or somebody is not working in properly, or maybe domestic staff is not working, or maybe someone in the office is not working. So instead of blaming them and criticizing them, we need to see where it is lacking within us, and how we convert it through the practices of gratitude to change that situation. First change things inside us, and then change that situation outside. So today universe is going to send us a lot of ways to how to find those cues, because universe is always sending us cues. Every moment there are cues, actually. Are we able to catch them or not? We need to see, and now we need to develop that habit that all cues sent by universe should be caught by us, whatever form they are in, through practice of gratitude. How we can change them, change the situations, change the people, change or attract the things that we want to attract in our life, how we can do that. So let me just open the book first, please. Yeah. So who would like to read today? Would somebody be interested in reading? Okay, Sonali, please unmute yourself. Where are you? Where do you disappear? आप एक बार हाथ उठाते फिर गायब हो जाते हो. उस दिन मैं शीला मैम को इसलिए अनम्यूट कर दी थी, thinking you were on top. Raise your hand again, Sonali. I can't see you. Are you there? Yeah, please unmute. Sonali, somehow it just disappears. Yeah. Now I'll lower my hand. Yeah, please do. But I still can't see you. Somehow, I don't know why. But yeah, anyways. Yeah, please carry on. I can't see the full screen, Cheptaji. I'm seeing it in a different form. What? You Okay, can't okay. see the screen? No. I can see it, but we are on the other page. Like,
Sorry, I didn't get it. What exactly do you mean? Other We are on the page where there is a pic, so I can't read anything. Okay, Right. no. So day 25, cue the magic. Only this much you had to read. Any case. Okay, okay. Okay, so day 25, cue the magic. Now there is this picture. In this, we are seeing there is a, this is the movie setup kind of a thing where there is a director's chairs and all the things that he needs, cameras and this clap करने का जो ये shot को clap करने का this ये होता है ना, whatever you call it. So through this, what they say, whenever this some scene is going on, and they catch it and say cut, yeah, उसको जो ये कर लेते हैं, what is the Take term? one, take two. Yeah, take one, take two, whatever, cut कि yeah, this has been captured, they have captured this scene has been captured like that, no? Whether it is, good or not, or, done properly or not, but it's been captured. So today we also need to capture everything, we are going to be in that director's seat today, that our mind has to be that alert and open all the time to be able to, capture whatever is going on around us and how to put a meaning into it and how to be grateful about all that is coming in front of us. Yeah, please read on. Yeah. Life is playful. Life is playfulness. We need to play so that we can discover the magic all around us. Flora Coelho, B. 1954, writer and therapist. Today's practice Cue the Magic is one of my favorite practices because it's a game to play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If Yeah. you hear Just stop it here for a while, huh? So the first quote is, life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Life was meant to be playfulness for us, but are we playing it? Or are we, lost in our thoughts, in some worry, some negativity? Every moment is bringing, an opportunity to feel for us to be in that state of playfulness, to be in that state of joy, because every moment is a fresh moment. And in this particular moment, as we talked about yesterday, इस मोमेंट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं, ये मोमेंट एकदम परफेक्ट है, हर चीज एकदम परफेक्शन में राइट नाउ। जो कुछ भी चीज अगर मेरे को गड़बड़ लग रही है तो वो दैट इज इन माय थॉट्स, इन माय माइंड। राइट नाउ मेरे सामने सिचुएशंस में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय करना सीख जाती हूँ, खुश रहना सीख जाती हूँ, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द लाइफ इज। लाइफ इज प्लेफुलनेस, एंजॉय द लाइफ। जो कुछ भी आ रहा है आपके सामने में, अगर उसमें अगर आप खुश रहना सीख जाते हो तो जो सिचुएशन आपको बॉदर कर भी रही है वो सिचुएशन आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाएगी। इट इज दैट पावरफुल इफ यू रिमेन इन द स्टेट ऑफ प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉय and whatever, just to have in that state of excitement, happiness and joy all the time. Oh, so something is wrong today. Even I can't see even myself today. Let me just see. Oh, yeah, now I can see. Okay. Right. So today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices. That is what Rhonda says, because it is a game you play with the universe and it's a lot of fun. क्योंकि ये एक ऐसा गेम है, आज की जो प्रैक्टिस है एक तरह का गेम है, उसको हम यूनिवर्स के साथ खेलते हैं। और ये इतना मजेदार गेम है कि अब हम लोग सीखेंगे कि इसको मजेदार जिंदगी को किस तरह से जिया जा सकता है, इसको मजे करके हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और ये गेम क्यों है। Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. तो हमको पहले ये समझना होगा कि यूनिवर्स ने या उस भगवान ने, उस परमात्मा ने अगर हमको इस जीवन में भेजा है, इस जीवन में हमको इस लाइफ में अगर भेजा है तो देयर इज सम रीजन ना, हमको इसलिए भेजा है
कि हम लाइफ को खुशियों से जी पाए, प्यार से जी पाए, आनंद से जी पाए, बिकॉज दैट वाज माय ओरिजिनल आइडेंटिटी। सोल की ओरिजिनल आइडेंटिटी यही है, आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, पीस स्वरूप, दैट इज व्हाट वी हैव बीन रीडिंग। बट हम लोग वो अपनी आइडेंटिटी से गुम हो जाते हैं। हमको काम वही करना था, खुशियां फैलाना था, खुशियों में जीना था, शांति फैलानी थी, शांति में जीना था, एक्साइटमेंट में, जॉय में जीना था, हमेशा ग्रेटिट्यूड में जीना था। बट जो हो गया वो हो गया, बिकॉज द यूनिवर्स कांट जस्ट वॉक अप एंड हैंड यू व्हाट यू वांट। तो इसलिए यूनिवर्स हमेशा चाहता यही है कि आप हमेशा खुशियों में जियो। इसीलिए आपको खुशियां देने के लिए अब वो खुद नहीं आ सकता हमारे पास में वो वैसी फॉर्म लेके। एक्चुअली तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, तो वो यूनिवर्स ही हमारे आसपास घूम रहा है ना, हर चीज में तो वही यूनिवर्स घूम रहा है। बट हमको देने के लिए भी अब किस तरह से वो आता है वो बाद में हमको दिखेगा। बट सिंस इट कैन नॉट कम, ऐसा लिखा है यहाँ पे, कांट जस्ट वॉक अप एंड हैंड यू व्हाट यू वांट। आपको वो सब देने के लिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वैसा कुछ मिलने के लिए आपको अपने आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए आपको वो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आपको ऐसे क्यूज भेजता है कि उन क्यूज को देख के आप उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। यू कैन यूज यू मे यूज दोज क्यूज through which you can, by being grateful for those cues, you can attract those things in your life. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful for. तो जितने भी लोग हैं अगर हमारे आसपास, एज आई सेड, इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास, तो अगर उनमें मेरे को बुराई दिख रही है तो वो बुराई मेरे अंदर से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब मेरे को अगर वो यूनिवर्स ने वो बुराई वाला चीज दिया है, सपोजिंग ऐसा सीन मुझे दिख रहा है और मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ वाकई ये बुराई मेरे अंदर में ही है, सपोजिंग किसी का एंग्री बिहेवियर है, एंगर एंगर वाला एटीट्यूड है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन कि ये तो बहुत गुस्सा करता है, जब देखो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, हाउ टू हैंडल दिस एंड दैट, बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये गुस्से में गड़बड़ है और मेरे को अपनी एटलीस्ट अपने लिए आई हैव टू बी अवे फ्रॉम दैट गुस्सा। एंड अनदर थिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल इज उसको ग्रेटिट्यूड करके कि उसकी वो स्टेट से निकल पाए, अपने उस गुस्से से वो निकल पाए, उसको ब्लेस करना, ये करना हमारे लिए उस टाइम पे बनता है, बनिस्बत इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज करें, उसके लिए उसको छोटा बुरा भला बोलें, उसको बुरा फील कराएं। तो अगर अपने अंदर में अगर हम उसको ब्लेस कर देते हैं, उसको प्यार की एंड ब्लेसिंग्स की फीलिंग भेज देते हैं, आई लव यू का फीलिंग भेज देते हैं, तो स्लोली वो चीज अपने आप चेंज हो जाएगी। इज इट नॉट सो? हम लोगों में से कई लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हम लोग जब भी किसी को आई लव यू अगर मन से अगर बोलना शुरू करें, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, आप अब जैसे होप पुनो पुनो हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें यही सब चीजें तो है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो कहीं भी बैठा वो इंसान, उसके पास वो एनर्जी पहुंच के उसको चेंज कर देती है। तो यहाँ भी हम वही प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं कि जैसे ही कुछ ऐसा हमारे सीन से हमने आता है सीन, तो उसको हम कैसे चेंज कर पाए। या प्लीज रीड ऑन सोनाली। चेतना जी थोड़ा we'll have to go a little above because I believe we left it on. हाँ जी, बस thank you. Works like this, yeah. हाँ जी, it works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. Yeah. So If you happen, abhi will stop, huh? So yeah, what Rhonda is teaching us in this, ki how from moment to moment we can be grateful even for the things which may otherwise scare us or worry us or
bring us down in the negative zones. तो just as अभी हम लोगों ने एक एंग्री वाले इंसान का एग्जांपल लिया था, सिमिलरली इफ यू हियर एन एम्बुलेंस सायरन, अब रास्ते में आती जाती कोई एम्बुलेंस की सायरन आपको सुनाई पड़ रही है, तो हमारे फर्स्ट थॉट क्या आता है, एक डर का, पता नहीं इसको क्या होगा, कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, और हम लोग हजार तरह का थॉट्स कम इन आवर माइंड कि गॉड फॉरबिड कहीं हम लोगों की हेल्थ में कहीं ऐसे नहीं हो जाए, या तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन दैट वे, वो वाला डर को जस्ट गिविंग इन योर एनर्जी टू दैट फियर, why not we create that thought ki at least is this moment I'm so happy and healthy, my whole family is so happy and healthy, and may God bless this person whoever is going into that, उसको एकदम परफेक्ट हेल्थ, एकदम बेस्टेस्ट हेल्थ से रिकवर होके वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आ जाए. तो द मैजिक क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स इज टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ. जब भी ऐसा हमको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई पड़ रहा है, इफ यू सी अ पुलिस कार, योर मैजिक क्यू कुड बी टू बी ग्रेटफुल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अब पुलिस कार को देख के हम लोगों को कभी ये भी लगता है ना कि जब देखो इनको पेट्रोलिंग करते हैं, इनको तो जहां मौका मिल भी जाए और हम लोगों से पैसा उगाने लगेंगे, कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं, कहीं भी हम लोगों को ये करके कि अपना लाइसेंस दिखाओ एंड आपका चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ जैसे ही आपको पुलिस कार रोकती है या आपको ये करती है या आपको कहीं किसी और को भी देखने, अगर दूसरे को भी किसी को रोकती है, तभी भी तो हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, ट्रैफिक पुलिस है या अदरवाइज पुलिस वाले, या पुलिस की गाड़ी देख के हमको डर आ जाए, या दूसरों को अगर रोक रहे हैं तभी भी देखो जब देखो इनको मौका मिलता है तो पैसा ही बनाना होता है इन लोगों को ना. दीज आर द थॉट्स हम लोगों के माइंड में आते हैं. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आता है एज अ हैबिट, अगर हमको थॉट आ भी रहा है तो उसको कट करके कैंसिल करके, अरे दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनकी अच्छाई देखें और उसके लिए उनको ब्लेस करें. थैंक यू, आप लोग सारा दिन हम लोगों के लिए काम करते हो. ट्रैफिक की लाइट्स कहीं दिख जाती है तो वो लाइट देख के ग्रम्बल करना, यार अभी तो 2 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा और ये आई एम गोइंग टू गेट लेट. तो वो ग्रम्बलिंग की वजह ये कि देखो ये इतना अच्छा सिस्टम बनाती है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, इतना अच्छा हमारा ट्रैफिक का सिस्टम हो जाता है कि उसकी वजह से भी ऑल आर सेफ. एक ऑर्डर में सब ट्रैफिक चल रहा होता है, तो भले थोड़ा आगे पीछे 2 मिनट होता भी है, तो हम लोग एटलीस्ट सेफली तो अपने घरों तक पहुंचते हैं, अपने वर्क प्लेसेस तक पहुंचते हैं, या जहां भी हमें जाना है वहां तक हम पहुंच पाते हैं. इफ यू सी समवन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज करना कि आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, इतनी तो उसमें गंदगी नहीं होती है, इतने गंदे न्यूज होते हैं, इतने सारे ये होते हैं, हमारा तो मेंटल स्पेस ही खराब हो जाए. तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ती हूँ मैं उसको ब्लेस करूं और ये करूं कि इसमें कम से कम वर्ल्ड का न्यूज आता है और अच्छी चीज ही मेरे पास आए. जो भी पढ़ रहा है उसको भी, भले उसमें कितनी भी बुरी न्यूज भी क्यों ना हो, उसको भी ये ब्लेस करे कि उसी चीज में से अपने लिए वो अच्छा निकाल पाए. या हम लोगों को भी अगर हम पढ़ना है या कुछ भी, तो एक ही चीज में से हम लोग अच्छा मीनिंग भी निकाल लेते हैं ना. सपोजिंग एक मूवी देखने जाते हैं, तो आई रिमेम्बर कि कोई भी ऐसा कुछ, स्पेशली व्हेन आई सेड, मैं सॉन्ग्स भी सब सुनती थी, मुझे बहुत मोटिवेट कर जाते थे. एक एक सॉन्ग के अंदर इतना मीनिंग होता है. या इसी किसी मूवी में भी आप देख जाते हो, तो मूवी में तो प्लस माइनस नेगेटिव अप डाउन वायलेंस सब कुछ होता है, तो कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ जाता था कि जो मैं कैच करती थी, दिस इज व्हाट द मैसेज इज फॉर मी. तो सिमिलरली न्यूज़पेपर से भी तो ऐसा कुछ मैसेजेस हम लोगों को मिल ही जाता है, पॉजिटिव भी होते हैं. जैसे स्पिरिचुअल के लिए भी बहुत सारा कुछ आता है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के बेसिस के ऊपर तो बहुत सारा कुछ ऐसा आता है जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग. हर चीज को, हमारी आदत एक बार हो जाती है ना नेगेटिव, बिकॉज हमारा माइंड उस तरह से बन गया है, यार दिस इज द एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कि हम लोग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ तुरंत ड्रिफ्ट होते हैं. या तो चिंता आएगी या घबराहट आएगी या ब्लेमिंग आएगी या गुस्सा आएगा या क्रिटिसिज्म आएगा. तो सिमिलरली तो इंस्टेड अपनी माइंड को कैसे हमें चेंज करना, क्योंकि एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ तो मेरा माइंड सोच ही रहा, कोई ना कोई थॉट आ जाएगा. आप जैसे ही आप आंखें भी बंद करते हो तो आपको समझ में आता है, व्हेन यू सिटिंग फॉर मेडिटेशन देन यू रियलाइज कि कितने थॉट चलते हैं. और जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो हमको रियलाइज भी नहीं होता कि कितने थॉट नॉन स्टॉप चल रहे होते हैं. जब हम लोग विपश्यना के लिए गए थे, तो विपश्यना में आई डोंट नो कितने लोगों ने किया होगा, आप लोग एक बार लिख सकते हो चैट में किसने किसने किया है. तो विपश्यना के लिए जब हम लोग गए थे तो वहां पे पहले दिन से हम लोगों को थोड़ी देर के लिए ये किया जाता है, हम लोगों को गाइड किया जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी 10 डेज का कोर्स होता है, तो 10 दिन आपको किस तरह के इसमें रहना है, माइंड सेट में रहना है, किस तरह का आपका बिहेवियर होगा. तो बहुत ही बेसिक सा हम लोगों का रूम होता था एक छोटा सा, वहां पे आप बैठ बहुत ही बेसिक, मतलब कोई ज्यादा तामझाम नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ सोने की जगह है, उस सोने भर के लिए रहता है. एंड जब आप खाना खाने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू बी लुकिंग एट एनीबडी.
आप जैसे ही देखते हो आपको अपनी आंखें वहां से हटा लेने, नो कम्युनिकेशन, बात तो करना बहुत दूर रहा, नो कम्युनिकेशन, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है। मिनिमम कम्युनिकेशन ये हो सकता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप वहां पे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनमें से किसी एक को बहुत ही मिनिमम शब्दों में कुछ बता सकते हो। बाकी एकदम सिंपल वे में, और जैसे भी ये खाली ध्यान पे ध्यान देना है अपना वहां पे जितना होगा, और आपकी आंखें भी किसी से नहीं मिली, जैसे ही आपकी आंखें मिलती हैं आप तुरंत अपना वहां से ध्यान हटा लोगे। तो आई वॉज रियलाइजिंग 10 दिन के बाद कि मेरी उससे फोन, लैपटॉप, बुक्स, नथिंग, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, सब ले लिया जाता है। सिर्फ आपके कपड़े होते हैं, आपको अलार्म क्लॉक होता है कि आप सोओगे रात को तो टाइम से आपको उठना है, ये 2-3 चीजें आपके पास होती हैं, एक टॉर्च वगैरह कि कहीं अंधेरे में आप आ रहे हो जा रहे हो, नथिंग, नो कन्वर्सेशन, नथिंग। तो आफ्टर 10 days आई वॉज रियलाइजिंग कि मेरा वो थॉट्स इतना कम हो गया था। एंड वाई इट हैपन, क्योंकि जैसे अगर हम लोग किसी को देख रहे हैं तो बात करने से तो होगा ही, हमारे थॉट्स बनेंगे ही बने। द मोमेंट आई एम सीइंग समबडी, उसका कॉम्प्लेक्शन मुझे दिखेगा, ये काली है, गोरी है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा, तुरंत एक थॉट आता है विदाउट आर रियलाइजिंग, है ना। या ये तो एक स्ट्रेंजर को मैं जब देख रही हूँ और जिस किसी जाने पहचाने को देख रही हूँ तो उसके साथ तो मेरी मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं कि पास्ट में इसने ऐसे बिहेव किया था, इसका अच्छा बिहेवियर होता है, और ये दिस इज अ वेरी लविंग फेलो, दिस इज अ वेरी बैड फेलो, ये तो बहुत हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है, तो वो मेमोरी के साथ मेरा थॉट जुड़ गया है। तो उसको देख के, ऐसे नॉन पीपल को देख के तो ऐसा वो वाले थॉट्स आ जाते हैं। तो हाउ इट इज लाइक हमारा माइंड कितने थॉट्स क्रिएट करता है, और उन थॉट्स में नेगेटिव ही ज्यादा होते हैं, और उन नेगेटिविटी को कन्वर्ट करके अपने पॉजिटिविटी में कैसे लेके आना, दिस प्रैक्टिस इज टीचिंग अस दैट टुडे। सो कौन कौन गया था विपश्यना में, देखूं मैं किसने अपना नाम लिखा है। रानी जी ने लिखा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। So if you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it is your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. अब हमारी वेट, कई लोगों ने अपना ड्रीम लिस्ट में भी लिखा होगा कि मेरे को अपना टारगेट वेट इतना है, यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, किसी को बढ़ाना है या किसी को करना है, उसने ये नहीं लिखा है कि वेट रिड्यूस करने के बाद कोई बढ़ाने का भी सोच सकता है, किसी को कम करने का भी हो सकता है, whatever. तो व्हेन यू सी एनी अदर पर्सन विद योर परफेक्ट वेट, जो आपको चाहिए, आप वो चाहे आपका परफेक्ट वेट है, आपका परफेक्ट लुक्स है, परफेक्ट हेयर है, जो भी है, आप ऐसा परफेक्शन किसी में देखते हो तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस, नॉर्मली वो जेलसी की फीलिंग आ जाती है, या ये वाली फीलिंग की पता नहीं कैसे इन लोगों का वेट ऐसे हो जाता है, मैं तो हवा भी मेरे को लगती है तो मेरा तो वेट बढ़ जाता है, मेरे को तो पानी से भी वेट बढ़ जाता है। और दूसरा जो बोलेगा मैं तो जितना खाता हूँ मेरा वेट ही नहीं बढ़ता, पता नहीं कैसे लोग परफेक्ट रहते हैं, इतना अच्छा से मेंटेन करते हैं, मैं तो कुछ भी कर लूं कुछ नहीं होता मेरा, कैसे लोग अपने वेट गेन की कंप्लेन करते हैं, मेरा तो नहीं हो रहा, मैं तो कितनी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो तुरंत ये थॉट्स आते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट थॉट यू से वाओ, ये परफेक्शन वाली फिगर मेरे को भगवान ने भेजी, दैट मीन्स इट इज माई क्यू, वो मेरे को ये बोलना चाह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेके आ रहा हूँ, सो बी थैंकफुल अबाउट दिस। अब ये तुम्हारी लाइफ में आने वाला, ये परफेक्ट वेट, ये परफेक्ट लुक्स, ये परफेक्ट हेयर, ये परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेल्थ, सब तुम्हारी लाइफ में आना है, जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। पर जैसे ही अगर मैंने उसके लिए क्रिटिसिज्म किया या एंगर फील हुआ, गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे लोग इतने अच्छे होते हैं और मेरा तो नहीं है, तो मेरी एनर्जी क्या है, मैं फिर वही अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ में, है ना। और यहाँ पे मैंने जैसे ही थैंक यू किया तो मेरी एनर्जी क्या है ना, मैंने उसको उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया जो मेरे को अभी दिख रही है, क्योंकि वो क्यों भेजा यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स ऐसे क्यों हम मोमेंट भेज रहा है मेरे को, और मेरे को खाली पकड़ना आना चाहिए कि नहीं, उससे उसके लिए बुरा नहीं फील करना। अब जो भी चीज हो, नेक्स्ट क्या बता रही है, अब देखो, इफ यू वांट अ रोमांटिक पार्टनर, when you see a couple madly in love, it is your magic cue to be grateful for the perfect partner, है ना। किसी अच्छे ऐसे कपल्स को देख लें तो अपना तुरंत ध्यान आ जाता है कि हम लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वी डोंट कम्युनिकेट दैट वेल, थॉट आ जाता है तुरंत, वेदर यू आर ग्रम्बलिंग और नॉट क्रिटिसाइजिंग और नथिंग, बट दैट थॉट कम्स, दैट थॉट इज कैरिंग व्हाट एनर्जी, that you are not satisfied with your relationship at the moment, whatever state it is in. So now be thankful that universe has sent that cue कि आ रहा है तुम्हारी लाइफ में भी, just be grateful, मैंने भेज दिया तुम्हारी लाइफ में, अब आ रहा है ये वाला। So if you want to receive it in speedier way, जल्दी आपको चाहिए, तो उसके लिए बार बार थैंक यू करना शुरू करो कि ये क्यू मेरे को भेजा यूनिवर्स ने, यूनिवर्स के लिए भी थैंक यू करो। And if you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. किसी को बच्चों की जरूरत है, कितने लोग बोलते हैं ना नहीं हो रहा, इतने सारे ट्रीटमेंट भी कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो ऐसे लोग फिर क्या होता है, दूसरों के बच्चों को देख के थोड़ा सा ना
रॉन्ग फीलिंग्स ही आता है, नेगेटिव फीलिंग्स ही है, जेलसी का ही फीलिंग आएगा। तो गेट ओवर दैट फीलिंग एंड उसको अट्रैक्ट करना कि अब ये बच्चे दिखाई इसीलिए रहा है यूनिवर्स कि वो आपके घर में आने वाले हैं, आपके घर में आके खेलने वाले हैं, या आप यू वांट अपने हम लोग बड़े हो गए, मेरे बेटे की शादी मेरे को करनी है, और मैं दूसरों को देखूं अगर कि उनके घरों में सबके घरों में शादियां हो रही, मेरा तो बेटा नहीं मान रहा है, तो आई जस्ट ब्लेस देम, सबके घरों में खुशियां रहे। वो जो लोग कपल्स हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चों के घरों में उनकी लाइफ बहुत सेटल रहे, बहुत प्यार में गुजरे, सब कुछ होगा। एंड इफ आई एम गेटिंग टू सी दैट मीन्स इट इज अ मैजिक क्यू फॉर मी कि मेरे लाइफ में भी वो चीज आएगी, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि दूसरों के तो बच्चों की हो गई, मेरा ही नहीं मानता है, ये नहीं है, वो नहीं है, डैन 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 डैन, वो नहीं सोचना। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल वे में ऐसे ही जाती थी थिंकिंग हमारी, बट नाउ वी आर चेंजिंग आवर थॉट पैटर्न्स एंड थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे एंड साइमल्टेनियसली पेइंग ग्रेटिट्यूड टू अट्रैक्ट इट फास्टर in our life. When you pass by your bank or an ATM, it is your magic cue to be grateful for plenty of money. कि plenty of money, ATM में लोगों को लाइन में देख के खड़े होके अपने, या खुद भी खड़े हो रहे तो परेशान होने की बजाय कि इतनी देर लाइन में खड़े होना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, बी ब्लेसिंग द मनी। आप whenever you are with me, या आपकी वजह से मेरी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है, आपके होने से मेरे पर्स में, आपके मेरे वॉलेट में अगर आप होते हो तो आई फील सो कंफर्टेबल, सो हैप्पी एंड सो elated and so independent also, and I feel so free and I'm blessed with this feeling of freedom whenever you are in ample amount with me. तो उसको उस तरह से bless करना, when you arrive home, it is your magic cue to be grateful for your home, and when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it is your magic cue to be grateful for your neighbors. नेबर ने, किसी ने आपको देख के हाथ हिलाया, तो उसके लिए भी ब्लेसिंग करना कि इतने अच्छे नेबर्स हैं हमारे आसपास, अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर किसी के साथ आपकी नहीं भी बनती है, तभी भी, कभी भी, जितने भी हैं उनकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू। इमेजिन करिए कि बहुत ऐसे आसपास कोई नेबरहुड ही नहीं हो, हम एकदम अकेले हमको रहना पड़े, कोई विसिनिटी में कोई नहीं रहता हो, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज दैट। ऐसे हम लोग लोगों को देखते रहते हैं, कम से कम हमारा माइंड में एक ये वाली लाइवलीनेस बनी रहती है, खुशी बनी रहती है कि लोगों को देखने को मिलता है, एक लाइफ देखने को मिल रही है। नहीं तो ऐसे कई कई बहुत दूरी जगह पे जो लोग रहते होंगे, तो उनको कितनी अकेलापन सा, ग्लूमीनेस सी, कुछ खालीपन सा, आई फील ऐसा लगता होगा, बिकॉज वो एक दिन 2 दिन के लिए तो आप ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हो, बट होल लाइफ के लिए यू कांट लिव इन सच प्लेसेस। सिमिलरली अपने घर में आ रहे हो तो मेरे सिर के ऊपर तो छत है, ये मेरे को ये दीवारें मिली हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करती हैं, सिक्योर रखती हैं, है ना। सबके पास वो वाली चीज नहीं होती, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर होम। इफ यू हैपन टू सी, ये वाला हो गया, नहीं हुआ ना सोनाली, इफ यू हैपन टू सी वन ऑफ योर मटेरियल डिजायर्स, सो प्लीज रीड ऑन। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says good morning, you're being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Yeah. So if you happen to see one of your material desires, अब हम लोगों ने अपनी डिजायर लिस्ट लिखी है, ड्रीम लिस्ट लिखी है, तो उसमें कई चीजें ऐसी हो सकती है ना, किसी ने अपना घर लिखा होगा, किसी ने गाड़ी मैनिफेस्ट करने का सोचा होगा, कोई को कोई और व्हीकल चाहिए, शूज चाहिए, बैग्स चाहिए रहते हैं, किसी को डिजाइनर कपड़े चाहिए रहते हैं, या किसी को ऐसा रिलेशनशिप चाहिए रहता है, किसी ने अपना लैपटॉप मैनिफेस्ट किया होगा। तो ऑफ कोर्स इट इज योर मैजिक क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स। वो चीज अगर आपके सामने आ जाती है, आपके सामने मतलब somebody else is using the same thing which you have tried to manifest, तो आपको ये क्यू मिल गया है कि वाओ, अब ये यूनिवर्स मेरे पास ये भेज रहा है, इसीलिए मेरी ये चीज जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, आपने ये वाला क्यू भेजा, एंड आई एम सो थैंकफुल कि इस इंसान के पास है, बनिस्बत इसके कि कर एकदम मेरे पास तो पता नहीं कब आएगा, मैंने तो लिख तो दिया ड्रीम लिस्ट में, अभी पता नहीं कब मैनिफेस्ट होगा। देखो लोगों के पास कितना पैसा है, कितना कुछ है, वो लोग तो अपनी हर चीज इतने इजीली खरीद पाते, मेरे को तो उसके लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, इतना ये सोचना पड़ रहा है, इतना ये विजुलाइज करना पड़ रहा है, पता नहीं कब तक तो आएगा। नो नॉट दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपको वो दिख गया। दिख भर जाना मतलब वो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है अभी। When you begin a new day and someone says good morning,
you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. कोई आपको गुड मॉर्निंग बोले तो अब हम लोगों की जैसे अभी प्रैक्टिस हो गई, अभी हम लोग लास्ट 24 दिन से 25 दिन आज हमारा हो गया कर रहे हैं ये प्रैक्टिस, तो हमको पता है ना कि हर मोमेंट में हर चीज में हम कैसे पॉजिटिव थॉट डालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं. इफ समबडी इज सेइंग गुड मॉर्निंग, सो दैट इज माय पॉजिटिव क्यू कि वाओ आज की मेरी मॉर्निंग, एंड मॉर्निंग ही क्या, मेरा तो पूरा दिन गुड डे है, पूरा दिन गुड मॉर्निंग है, गुड डे है, गुड इवनिंग है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड. If you come across someone who's really happy, it is your magic cue to be grateful for happiness. जितनी भी happiness हमें जब भी मिली है, आज भी मिल रही है, उस happiness के लिए gratitude, या अपने आप को somebody is looking happy और आपको आप देख रहे हो कि मेरा mood उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं है, chirpy नहीं है, cheerful नहीं है, तो that cue मेरे को आ गया कि be cheerful. अपने इसी मोमेंट पे अपने अंदर वो हंसी लेके आओ, खुशी लेके आओ. इसी टाइम में वो खुशी फील करने का मोमेंट है, बिकॉज नेक्स्ट मोमेंट इज नेवर गोइंग टू कम. अभी हो जाओ खुश. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. अब सपोजिंग ओवरहियरिंग के लिए बोला, अगर हम लोग दो लोगों को बात करते सुन रहे हैं कि कोई दो लेडीज अपनी ज्वेलरी के लिए बात करी, देखो मैंने ये खरीदा, या कोई अपने अपने कपड़ों को फ्लॉन्ट कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या शो ऑफ है कि उन लोगों को तो खाली कपड़ा खरीदना ही इसीलिए होता है कि क्योंकि लोगों को चार लोगों को दिखाना होता है, वही थॉट आता है ना. तो नो, डोंट अलाउ दैट थॉट टू कम. वाह इतने अच्छे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, लवली, थैंक यू, ब्लेस देम, इनके पास और इन लोगों को डिजाइनर कपड़े पहनने का मौका मिले, इनके पास और ज्वेलरी आए, इनके पास और इतने अच्छे अच्छे घर के अंदर भी जितना डेकोरेशन कर सकते हैं उनके और घर बने, इनके और गाड़ियां आए, इनके सब कुछ इनको मिले, वो ब्लेसिंग्स देना, तब वो चीज हमारे पास भी आएगी, तब हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, बिकॉज आई हैव जनरेटेड गुड फीलिंग्स. And I will only attract something if I have that good feeling within me. Then good energy is going to attract that thing for myself. There are unlimited and so if somebody is saying thank you, कहीं पे किसी ने बोला है तो आपको भी थैंक यू करने का मौका है. तो किसी ऐसे दो लोगों को आपने बात करते हुए सुन लिया कि वो लोग अपना ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, या हमारे फ्रेंड में ही 10 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि चलो हम लोग ना एक प्लान बनाते हैं, और मेरे को लग रहा है कि नहीं मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो वो लोग अगर 10 में से 9 लोग जा पा रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू गो, थैंक यू, दे आर गोइंग, दे सून इज गोइंग टू बी टाइम जब मैं भी निकल पाऊंगी, एंड आई एम गोइंग टू बी ज्वाइनिंग देम, थैंक यू एंड ब्लेस देम. वो बहुत खुशियां करके आए, बहुत मजे करके आए, या कहीं पे दूर में कहीं खड़े कोई लोग बात कर रहे हैं कि मैं तो नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ और मेरे मेरे सब रजिस्ट्रेशन और ये वो हो गया, बस मेरी डिलीवरी आने वाली कल, तो मैंने भी सोचा हुआ कि मेरे को गाड़ी चाहिए, तो उसको देख के अब ये नहीं करने का कि मेरे को पता नहीं कब मिलेगी नहीं मिलेगी, वाह उसके पास आ रही है, दैट मीन्स ये मेरे को मैजिक क्यों मिल गया, मेरे पास भी आने वाली है अभी जल्दी, है ना. या सोनाली प्लीज रीड ऑन. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. Yeah. So there are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day life. अब यूनिवर्स भी बहुत तरीके सोचता है, बहुत तरीकों से भेजता है. तो अभी तो अगर इस तरह से हर चीज जो मुझे दिख रही है, हर चीज जो मैं फील कर पा रही हूँ, हर सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, या हर इंसान जो मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ दिख रहा है, उसके साथ मेरा क्या थॉट जुड़ा हुआ है, वो थॉट मेरा पॉजिटिविटी से भरा है कि नेगेटिविटी से भरा है, वो क्या मुझे बता रहा है, मेरी अपनी इंटरनल सोच मुझे क्या कहाँ पे लेके जा रही है. कैच दैट थॉट, उस चीज पे, उस इंसान पे, उस सिचुएशन पे फोकस करके हाउ आई कन्वर्ट दैट, इससे मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, ये मैसेज को मैं अपनी लाइफ में किस तरह से अट्रैक्ट कर रही हूँ, नेगेटिविटी के रूप में या पॉजिटिविटी के रूप में. अगर मैं ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ चली जा रही हूँ, सोच मेरी नेगेटिविटी हो जा रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे देख के मेरे को लग रहा है यहाँ से भाग जाऊं, ये तो इन लोगों का इस तरह से बिहेवियर होता है, इनको मैनेज करना मुश्किल है या इनके साथ रहना मुश्किल है, या उसकी जगह मुझे ये आता है कि कम से कम ये लोग हैं साथ में तो मेरे को कंपनी मिलती है, बी ग्रेटफुल, और उनके लिए उनको ब्लेस करके उनकी वो नेगेटिव एनर्जी को चेंज करना.
तो अपने आप को, मेरे को यूनिवर्स मोमेंट टू मोमेंट वो क्यूज भेज रहा है इन डिफरेंट वेज. आई नीड टू कैच कि इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, इस चीज से मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है वो यूनिवर्स. एंड आप जो सोचोगे, आप जिस तरह की भी, अब एक ही सिचुएशन है, एक सिचुएशन में सोनाली को उसमें अलग मैसेज दिख जाएगा, क्यों दिख जाएगा, मुझे अलग दिख जाएगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि या तो मैं रॉन्ग हूं या सोनाली रॉन्ग है, क्योंकि यूनिवर्स ने एक ही तरह से मैसेज भेजा है. नो, यूनिवर्स ने क्यों भेजा, आप उसको अपनी तरह से कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट इज योर वे ऑफ, दैट इज योर क्यू. आपने उसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया, उसी तरह से वो आपके पास आना था. सो आप, यू आर फ्री टू थिंक वट एवर वे यू वॉन्ट टू थिंक. उसको, उसमें से क्या मीनिंग निकालना है, कैसे उसको सोचना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये एंटायरली आपके ऊपर है. Because so you can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think is a cue for you, and you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. उस मोमेंट में, इस मोमेंट में आपके पास वही चीज सामने आएगी, उसी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा. अब हजार चीजें हो रही हैं, हजारों के ऊपर तो आप एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं ध्यान देते हो ना, बहुत सारी चीजें भी पड़ी हैं आपके सामने. आपका ध्यान अट्रैक्ट वहीं पे होगा जहां पे आपको मैसेज देना है यूनिवर्स को, जहां पे आपको क्यू देना है. तो आपको, एंड बी रिलैक्स्ड अबाउट दैट. इसका ये नहीं है कि हमको टेंस्ड अप हो जाना कि मेरे को कैसे पकड़ने क्यूज. नो, बिकॉज आपका ध्यान, आपका अटेंशन जाएगा ही उसी चीज पे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे लिए क्यू आया है. नाउ वी विल बी starting to getting that kind of alertness in us. So the cue the magic has become a daily game that I play, and with practice I now automatically see all the magic cues the universe gives me. तो ये अब प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हम लोगों को भी आ जाएगा कि चलो, जो भी है हमारे सामने, मेरे सामने जो भी चीज आ रही है, कि अगर ये आपका वाटर पंप, हमारा जो पंप हमारा पानी ऊपर खींचता है, या कोई भी चीज है, या सपोज देयर इज अ ब्रेक डाउन फ्रिज में, या किसी अवन में, या किसी चीज में, तो उसके लिए मेरे को चिड़चिड़ाहट हो रही है कि अब ये कैसे काम होगा, कि क्या होगा, या उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि इतने दिन तक तो इसने मेरा इतना साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू करके उसको ब्लेस करना. एंड देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, हम लोगों ने ये करके भी देखा है कई बार. थोड़ा बहुत अगर ब्रेक डाउन होता है किसी भी चीज में, स्पेशली माई व्हेन आई फर्स्ट लर्न अबाउट होपोनोपोनो, देन आई लर्न कि ये सभी चीजों में हम लोगों का यूज हो सकता है. तो इट इज कैरिंग ऑल दोज वाइब्रेशंस, फॉरगिवनेस का भी, एंड उसका लव का भी, एंड ग्रेटिट्यूड का भी. तो वॉशिंग मशीन के लिए जैसे मैंने करना शुरू किया ना, बिकॉज इट यूज टू स्टॉप, चला फिर स्टॉप हो गया, या नहीं चलना ही शुरू नहीं होता था. तो उसको जैसे ही आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू 11 बार, कभी 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुक के वहां पे मैंने कर दिया, ऑटोमेटिकली इट्स यूज टू स्टार्ट. एंड देन आई शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ ऐसे हम लोगों का सेशन जब होता था, देन अदर्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग. वो बोले, कोई बोला कि मेरा लैपटॉप में ऐसे गड़बड़ करता था, मैंने उसको जैसे ही ये किया, थैंक यू का एनर्जी दिया, होपोनोपोनो किया, ऑटोमेटिकली कैसे मिरेक्युलसली वो चलना शुरू हो गया. तो हर चीज एनर्जी हमारी ऑब्जॉर्ब कर रही है ना. हम लोगों को लगता है कि नॉन लिविंग चीजें हैं, नहीं, नॉन लिविंग चीजें नहीं है, इनके अंदर भी वो वाली ऑब्जॉर्ब करने की पावर है. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जॉर्बिंग वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट देम. आर वी कर्सिंग देम, आर वी ब्लेसिंग देम, आर वी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर देम, वट एवर दे हैव बीन डूइंग फॉर अस. सो डिफरेंट वेज ऑफ क्यू द मैजिक. एंड शी सेज कि ये जब हम, मेरे अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई और मैंने डेली डेली करना शुरू किया, तो अब मेरे को कोई भी चीज मेरी आंख से स्केप नहीं करती, ध्यान से स्केप नहीं करती, जहां पे मुझे क्यों नहीं मिलता हो. या प्लीज रीड. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. Sorry. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in a line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night,
It's a cue to be grateful for the great day that I had. Yeah. So few more examples she's giving me ki how she does it, every day. When I receive a phone call from a friend or family member, then it is a cue to be grateful for him or her, है ना? For their presence in our life. कभी हम लोगों को कई कई दिनों तक अगर हमारी किसी से बात नहीं होती और सडनली किसी का फोन आ जाता है तो हाउ नाइस वी फील ना कि इतने दिनों के बाद आपसे बात हुई, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो चाहे कोई फ्रेंड हो. एंड व्हेन समवन सेज इट इज अ ब्यूटीफुल डे, it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live. किसी ने मेरे को ये रिमाइंड करा दिया कि मेरे को शायद ध्यान नहीं था कि वेदर के लिए ग्रेटिट्यूड करूं, बट किसी ने कहा कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ध्यान चला गया कि लवली वेदर ना, कितना अच्छा तो है. एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन दिस काइंड ऑफ कंट्री या प्लेस जहाँ पे हमको इतने अच्छे वेदर्स हम लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं. So if an appliance breaks down, it is a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. एक में आ गई गड़बड़, आप उसको लिए होपोनोपोनो कर दिया, बाकी के सारे तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं ना, तब तुरंत ध्यान की नहीं, इसकी कंप्लेन नहीं करनी, बल्कि जो अच्छे चल रहे हैं उनके लिए थैंक यू बोलना. इस तरह से मेरे को अपने ध्यान को डाइवर्ट करना. If a plant in my garden is struggling, it is a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. पौधों के लिए भी यही बात कि एक में गड़बड़ आ गई तो उसको भी I have seen people reporting कि उन्होंने एकदम ड्राई प्लांट को पुराना पिक्चर्स एंड न्यू पिक्चर दे हैव शेयर्ड कि पुराना पिक्चर एकदम जैसे ड्राई हो गया प्लांट, उसको आई लव यू एंड होप उनका प्रेयर करके उसको रिवाइव किया एंड दैट प्लांट गॉट रिवाइव्ड. तो ये पावर है हमारे अंदर. तो हम डर जाएं या क्या कि मेरे से तो होता ही नहीं, मैं प्लांट्स जब भी लेके आती हूँ मर ही जाते हैं, उनको कैसे केयर करना मुझे तो पता ही नहीं है, और माली लोगों को भी रख लो तो वो लोग भी 10 दिन में कभी आने की बात है या हफ्ते में आने की बात है तो वो लोग भी टाइम से नहीं आता है. इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट ऑल दैट डाइवर्ट योर एनर्जी अटेंशन कि मैं क्या कर सकती हूँ सिचुएशन में, मैं उसको ब्लेस कर सकती हूँ, होपोनोपोनो कर सकती हूँ. साथ ही साथ मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स जो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं उनको थैंक यू बोलने में कर सकती हूँ, सो दैट द एनवायरमेंट बिकम्स दैट हैप्पी हेल्दी प्योर फुल ऑफ प्योरिटी एंड जॉय. सो दैट जो ये बेचारा मर रहा है प्लांट, इसके पास भी वो वाली एनर्जी जाए. अगर मैं थैंक यू करने लगूंगी वो मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी एंड दैट एनर्जी इज स्प्रेडिंग, तो ये इसको भी तो इम्पैक्ट करेगी जो स्ट्रगल कर रहा है प्लांट, है ना. तो दिस इज हाउ वी चेंज आर. सिमिलरली हमारे घर में भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है, कहीं पे ऐसा कुछ कुछ गड़बड़ आ रहा है, कुछ ब्रेक डाउन आ रहा है किसी रिलेशनशिप में, तो जब हम अपनी पॉजिटिव करते हैं अपनी एनर्जी को तो वो इम्पैक्ट करती है ना. किसी के साथ मेरा ब्रेक डाउन है, सास के साथ नहीं बन रही है, बच्चों के साथ नहीं बन रही है, कहीं पे खिटपिट थोड़ी सी चल रही है, तो उनको खाली प्यार की एनर्जी भेजना, ब्लेसिंग की एनर्जी भेजना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तो कैसे चेंज आ जाता है उनके अंदर. एंड इट विल चेंज डेफिनेटली. हम अपने अंदर ही करें, हमको बाहर जाके उनको आई लव यू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे सिचुएशन नहीं है वैसी, नहीं हो सकता, है ना. मेरा माइंड भी नहीं मान रहा है कि नहीं ऐसा तो हम लोगों का स्ट्रेन वाला रिलेशन है, मैं नहीं जा सकती उसके साथ, ऐसा नहीं कर सकती, बट अंदर में तो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, अंदर में तो वो फीलिंग जगा सकती हूँ. तो अंदर में जगाओ, बाहर में वो रिफ्लेक्ट अपने आप होने लगेगा, अपने आप ही वो इंसान आ जाएगा, आपको हग कर लेगा या आपको आके सॉरी बोल लेगा या आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाएगा. थिंग्स विल चेंज डेफिनेटली. So when I collect the mail, it is a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. अब वो क्या करती है, रोंडा ने अपने इंटरव्यू में यही बताया कि मेरे पास जब ऐसे आता तो मैं यूनिवर्स के साथ कैसे गेम्स खेलती थी. अब मेल में कुछ आया, अगर ऐसा कुछ आया तो जहाँ पे मेरे को पेमेंट भी करना है तो मैं उसको ये कर लेती थी कि मेरे को ये रिसीव करना है और उसमें 2 या 3 जीरोस और बढ़ा देती थी कि मेरे पास ये चेक आ रहा है अभी वापस, और उसको वैसे विजुअलाइज करके मैं डांस करने लगती थी, खुश हो जाती थी, सेलिब्रेट करती थी. एंड सूनर और लेटर वही अमाउंट मेरे पास आ जाता था. तो मेल में जब मेरे को आया तो मेरे को डरने का नहीं कि पता नहीं क्या आया होगा क्या नहीं आया होगा, या वट एवर एनी नेगेटिव थॉट उसके लिए आ रहा है, तो मेरे पास चेक्स आने वाले हैं कि मेरे पास आगे खबर आने वाली है कि मेरे पास और money is going to pour into my life, yeah, happiness is going to pour into my life, something is good I'm going to be getting from this mail. If a person I know comes, एटीएम के लिए भी यही बात बोला कि एटीएम से जब हमको मिला तो हम एटीएम के लिए से पैसा अगर हम निकाल रहे हैं या कोई और निकाल रहा है, आते जाते रास्तों में भी अगर हम किसी को देख रहे हैं, किसी ने एटीएम पे हमारी नजर पड़ी, लोग वहां से निकाल रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल कि मेरे को जितना दिया है बहुत खुशी है उसमें, और जब भी पैसा मेरे पास रहता है तो मुझे कितना एम्पावर फील कराता है, और आई एम सो हैप्पी एंड grateful and glad to be receiving you more and more of you in my life. अफर्मेशन भी कर दिया उसी टाइम पे,
आप जितने हो उसके लिए भी बहुत खुश हूँ, और मैं आपको रिसीव करने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए आई एम so हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग टू बी वेलकमिंग यू, मोर ऑफ यू इन माई लाइफ. If a person comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. उसके लिए भी ब्लेसिंग करना कि वो भी एकदम परफेक्टली ठीक हो जाए और मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है, इसके लिए थैंक यू करना. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it is a cue to be grateful for the great day that I had. तो मॉर्निंग में किया, नया दिन मेरे को जीने को भी मिल गया, आज नया दिन में मेरे को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या मेरे को लर्निंग्स आ रही है, क्या क्या मेरे को मैसेजेस मिलेंगे, किस तरह से ये अच्छा दिन अनफोल्ड होने वाला है. सी वी हैव डन दैट प्रैक्टिस ऑफ मैजिकल हैव अ मैजिकल डे. तो वैसे करके मैं अपने दिन को मैजिकल बना लूंगी. और रात को सोने से पहले कि मेरी वो प्रैक्टिस से मेरे को कितना अच्छा हुआ, रात को जब मैं कर रही हूँ मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर्दे बंद कर रही हूँ, मैजिक रॉक करने वाली कि वाह व्हाट अ वंडरफुल डे आई हैड. नो व्हाटएवर द एक्सपीरियंस वाज, क्रिएटिंग दिस फीलिंग कि मेरा दिन कितना अच्छा गया, कितना सुंदर दिन था आज, कितनी खुशियां लेके आया था. क्योंकि हर मोमेंट में खुशी है. चाहे मैंने वो खाना खाया था या नहाने के लिए गई, मेरे को पानी अवेलेबल था, उस नहाने से मुझे जो फीलिंग हुआ, मेरी बॉडी में जो क्लीनिंग हुई, हर मोमेंट ही मेरे लिए खुशी लेके आया था. मेरे पास शैम्पू था, उसकी स्मेल से मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे बाल इतने साफ हो गए, यू नो. या फिर आप जो जो चीजें यूज कर रहे हो, आपको फ्रूट्स खाने को मिले, आपको ड्राई फ्रूट खाने को मिला, या आपको कुछ स्नैकिंग करने को मिला, हर चीज से आपने एंजॉय किया, तो वो हर चीज में मैजिक था, हर चीज में हैप्पीनेस था. उस चीज के लिए थैंक यू करना जब रात को सोने जाएं. या प्लीज पढ़िएगा. To play cue the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Yeah. So she has given the example. आज हमको हमारा प्रैक्टिस क्या है? We have to catch 7 such magic cues today and feel grateful for about them. For example, she is given किसी का आप परफेक्ट अपने जैसा परफेक्ट बॉडी वेट आप देखना चाह रहे हो, वैसा कोई इंसान आपको दिख जाए, चाहे वो आपको फोन पे दिख रहा है, टीवी में दिख रहा है, या आपको लाइव दिख रहा है, कहीं आते जाते दिख रहा है, विच एवर वे, then what you are supposed to be saying, thank you for my perfect weight. So no writing work today. It is only in our mental. And then she says you can never do too much gratitude. बस इतना बोल के रह नहीं जाना, उसको डीपली फील करना, बहुत खुश हो जाना कि वाह यूनिवर्स आपने ये मैजिक क्यों लेके आओ, तालियां बजाने लगो, खुश हो जाओ, वाह 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 ये आ गया मेरे सामने, दैट मीन्स आई एम रीचिंग माय मैजिकल वेट, माय परफेक्ट बॉडी वेट. सो हैप्पी, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस मैजिकल क्यू टू मी. थैंक यू, आपने मुझे दिखा दिया, दैट मीन्स ये फटाफट मैं भी पहुंच जाऊंगी उस वेट पे. दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड जितना डीपली करो और जितनी ज्यादा देर तक करो, 1-2 मिनट लगा दो, वाह लवली, वाह मजा आ गया आज को देख के, तो खुश हो गई, मैं खुश हो गई, ऐसे करके बार बार वाह 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 का फीलिंग, जितना अंदर अपने वाह फीलिंग जगाएंगे उतना वाह मेरी लाइफ में आएगा. So if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. 7 के लिए हमको बोली है, but try and see आप कितने alert हो, कितने aware हो, आप कितने ज्यादा और catch कर सकते हो, and you can do to as many cues you can try to catch and be grateful for them. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. अब हमारे अंदर वो alertness आ गई है, क्योंकि 24 दिन से हम यही कर रहे हैं, बहुत हमने प्रैक्टिसेस की हैं और बहुत हमने डिटेल में समझा है कि छोटी छोटी चीज के लिए हमको कैसे ग्रेटिट्यूड करना है. तो हमको एंडलेस क्यू मिल सकते हैं आज, तो हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम किस क्यू को कैसे पकड़ें और कैसे उसका ग्रेटिट्यूड करें. एंड टुमारो आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीबडी विल शेयर कि किसने क्या क्या क्यूज पकड़े थे और कैसे कैसे
शेयर कर, अब उसके बारे में आपने कैसे ग्रेटिट्यूड फील किया. ओके, सो बिकॉज इट इज अ मेंटल प्रैक्टिस, नो राइटिंग प्रैक्टिस, तो वो मेंटल एक्सरसाइज आप लोग मेरे को कल सब लोग शेयर करेंगे. So one of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up. Wakes you up क्या, हम लोग नींद में चलते होते हैं ना कई बार क्या, हमेशा हमारा आधा से ज्यादा जीवन नींद में ही निकल जाता है. बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, हमको चीजें दिखती नहीं, हमको फूल नहीं दिखते, हमको हमारे घर के नहीं, फोटोग्राफ्स सामने पड़े, हमने कहाँ ध्यान से उनको देखा कि ये मेमोरीज है, इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज है, मैंने कहाँ ध्यान से जाके उनको देखा या उनके लिए थैंक यू बोला. आते जाते कितने सारे लोग होते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता किसको मेरी मैजिक डस्ट की जरूरत है, किसको मेरे प्यार की जरूरत है, किसको मेरे ग्रेटिट्यूड की जरूरत है. या इतने पेड़ है मेरे को हिल हिल के हाय हाय बोल रहे, चेतना लुक एट मी, चेतना लुक एट मी, मैं कहाँ ध्यान देती हूँ, बिकॉज नींद में होती हूँ. नींद में क्या, माइंड इज कॉट अप इन सम थॉट, सम वरी, सम टेंशन, सम काइंड ऑफ चैटर गोइंग ऑन इन माई माइंड. तो उस चैटर से निकाल के जब हम इतने अलर्ट हो जाते हैं, इतनी इस प्रैक्टिस को करने का ध्यान सोचे, तो मेरा माइंड उस चैटर से निकल पाता है, उस नींद से जाग पाता है, जिस नींद में हम बेहोशी में पूरी लाइफ अपनी बिता देते हैं. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe, cue the magic. अब universe को बोलो कि universe cue the magic, मेरे पास भेजो cues. आज मेरे को कौन से मैजिक क्यूज आप पकड़वाना चाह रहे हो, मेरे को खाली इतना करना, नाउ क्यू द मैजिक, सपोर्ट मी, मेरे को ध्यान कराना, मुझे खाली इतना अलर्ट कर देना, इतना अवेयर कर देना कि मैं आपके दिए गए सारे क्यूज को पकड़ सकूं, और जितने हो सके उनके लिए ग्रेटिट्यूड करके तो कल आके उतने सब शेयर भी कर सकूं, है ना. प्लीज रीड ऑन मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Sonali. Thank you so much for reading. Thank you, Chetna ji. Thank you, everyone. सो अगेन आज का असाइनमेंट में कल मॉर्निंग वाला और रात का जो हमारा रेगुलर होता है, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सेइंग, रीडिंग ईच वन ऑफ देम, एंड आफ्टर रीडिंग ईच वन ऑफ देम सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नॉट ओनली सेइंग बट डीपली फीलिंग फ्रॉम योर हार्ट, एंड उसको फील करते हुए आंखें बंद करके, हो सके तो हार्ट पे हाथ रख के थैंक यू बोलना. एंड जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप होल्ड द योर मैजिक रॉक इन वन हैंड, जो रात को हम करते हैं, तो वो करना भी बहुत जरूरी है, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसके लिए थैंक यू बोलना. एंड इन बिटवीन पूरे दिन हमको अलर्ट रहना है, आज भी एंड कल भी, टू एटलीस्ट फाइंड 7 क्यूज इन एंड अराउंड अस, जितनी भी सब चीजें हमको दिख रही हैं. सपोजिंग मुझे एक पेड़ दिख रहा है तो उसके लिए थैंक यू, वाओ आपके दिए गए ऑक्सीजन से आई ब्रीद इन द ऑक्सीजन, एंड मेरी निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लेते हो. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर प्योरिफाइंग द एनवायरनमेंट अराउंड अस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल आप लोग हमारा आपके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो ये होती है, प्रोसेस होती है, सन को थैंक यू करना, सन दिख गया, फोटोसिंथेसिस करते हो आप, एनर्जी देते हो प्लांट्स को, उससे उनके अंदर क्लोरोफिल पैदा होता है, उससे हमारा खाना बनता है. सो वट एवर यू आर एबल टू सी, पानी दिख रहा है तो वाह कितना फ्रीली हमको पानी अवेलेबल है, पानी पी रहे हैं या पानी से कुछ भी काम कर रहे हैं, या घर में जो भी आपको खाना आ रहा है तो उस खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करना, मेरे को भरपेट खाना मिल जाता है, या मेरी पसंद का खाना मेरे को बन के मिलता है एवरी डे, जो मैं चाहती हूँ मेरे घर में वैसे बन जाता है. सो एंडलेस क्यूज आर देयर विच यू कैन फाइंड एंड बी ग्रेटफुल अबाउट. ठीक है. Thank you so much everyone for joining. Now anyone has any questions or any sharings, would love to welcome you all for that. हेलो चेतना जी. या मुदिता बोलो. हाँ, मेरे को एक शेयरिंग करनी थी. जी, आज बोलो. आप अप्लायंसेस का जो एग्जांपल दिए तो मेरे को याद आ गया, सुबह में मेरा इंडक्शन नहीं चल रहा था, तो मेरी मेड उस इंडक्शन को बार बार ऑन ऑफ कर रही थी. फिर मैंने उससे कहा कि तुम 2 मिनट हटो. मैंने उसको खूब ग्रेटिट्यूड दिया और उसके बाद जैसे ही उसको ऑन किया वो चल गया.
या होते हैं या हर चीज ऐसे काम करती है, और स्पेशली ये आपका जैसे ये काम है, या हम लोग भी घर में तो बहुत सारी चीजें कभी भी ब्रेक डाउन हो जाती है ना, जस्ट हाँ ऐसे थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, एंड आई एम सॉरी, सॉरी भी बोल दूं कि मैंने आपका शायद केयर नहीं लिया है, आपको बहुत सालों तक ओवरवर्क करना पड़ा, आई एम सो सॉरी ना, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इतने टाइम तक आप हमेशा हेल्प करते रहते हो, ड्यू टू यू इतनी लाइफ कन्वीनियंट हो गई है कि हर काम थोड़ी देर में हो जाता है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है, गैस स्टोव नहीं भी होगा, अब तो वो इंडक्शन होता है, तो मेरे को कितना कन्वीनियंस हो गया, राइट। हाँ, सच में मतलब आज मेरा सिलेंडर खत्म होने से मेरे को इंडक्शन लगाना पड़ा। तो फिर मैं वो बोली बोली कैसे चाय बनेगी, हमने कहा 2 मिनट शांत रहो। फिर हम उसको कुछ नहीं बोले, फिर हम मन में थैंक यू बोले उसको अप्लायंसेस को पकड़ के। उसके बाद जब वो चल गया तो हमने कहा देखो ऐसे हो तो सब समय थैंक यू बोला करो। तो मतलब एक ऐसा लगा कि चलो इन लोगों में भी अगर थोड़ा धीरे धीरे आ जाता है कि हाँ मतलब थैंक यू बोलने से बल्कि सब कुछ हो हाँ, जाता है। थैंक यू ये, एंड दे शुड जैसे अब हम लोगों, मुझे ये वाला थॉट आया कि जैसे मेड्स काम कर रहे होते हैं, या घर में डोमेस्टिक हेल्प आपका खाना बना रही है, तो उनको बस ये खाली हमने बता दिया ना, क्योंकि पानी के साथ उनका बहुत रहता है ना, हर हर चीज में हाँ पानी का यूज हो रहा है, और पानी की मेमोरी बहुत शार्प है, वो फटाफट कैच करती है, और वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, चाहे वो बर्तन धो रहे हैं तो बर्तनों में वो मेमोरी चली गई, या कपड़े धो रहे हैं तो कपड़ों में चली गई, या खाना बन रहा है तो खाने में चली गई, एवरीथिंग वी आर यूजिंग ना। तो उनको ये गाइड करना कि आप जब भी काम कर रहे हो तो इसको एक बार प्यार से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके फिर अपना काम शुरू करो, या इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि मैं जो भी काम करूंगी बहुत अच्छे से भी होगा, बहुत जल्दी भी होगा, और बहुत अच्छा होके आएगा, खाना बना रहे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इस तरह का सो उससे भी या फर्क पड़ता है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी, एनीवन एल्स? Chetna ji, me, I would like to share something. Uh, जी, yeah, today I was very, very happy because really just being in gratitude and saying the Ho'oponopo prayer, whenever I'm free, I just keep chanting. I think like those, what you say, like the priests, nuns, and bhajis who go on saying their prayers. I've become like that now because God has given me the time. And today afternoon, I was so happy. Both my sons came for lunch and we all had lunch together, and after a long time, and my daughter-in-law went for a dental treatment. I had told her also, I thought she won't come, she also came for lunch, and so we all had a very nice afternoon. The Ho'oponopo prayer, the love, the gratitude just brings everyone together, whatever wishes we have, no? yeah, And I'm so happy. Thank you. thank you, and keep being happy. Happiness is what is going to attract your desired life to you, and you have just Yeah, found, just tapped yeah, into, just found that tool how to keep yourself happy just by indulging in these practices, है ना? We all yeah, have found कि जितना जितना अपना happiness में yeah. रहेगी, उतना उतना मेरी लाइफ मैजिकल होती जाएगी, Mm, है ना? yes. Yeah. Thank you. Thank you so much for sharing, Susanna ji. Yeah. Anyone else has anything to ask about today's assignment? और कैसे आप लोगों की प्रैक्टिसेस चल रही हैं? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? और दूसरे लोगों का कोई ये नहीं आता है, एक सुजैना जी कर देती है, एंड आज मुदिता ने 1-2 दिन से ये किया है, वो करना शुरू किया है, बाकी सब चुप ही रहते हैं, शीला मैम कर देती है कभी, एंड अदर्स, एनीवन, व्हाटएवर लिटिल यू आर डूइंग। रानी मैम आप अनम्यूट करो, आप भी ज्वाइन कर रहे हो इतने दिन से। हाँ, ज्योति, मैं भी रोज करती हूँ ग्रेटफुल होने के 10 रोज प्रैक्टिस रोज सोच के करती हूँ। रात को भी रॉक का प्रैक्टिस करती हूँ। दिन भर भी जितना याद रहता है थैंक यू, आई एम सॉरी, ये होपोनोपो करती रहती हूँ मैं। अब कहते हैं ना जैसे रूटीन में आ गया है। क्या कुछ भी ध्यान आता है एकदम से आता है कि ये करना है। थैंक जब यू। जब याद आता है करती हूँ। कई बार भूल भी जाती हूँ पर साथ साथ चलता भी रहता है। आई एम सो ग्रेटफुल। वही है ना कि एटलीस्ट वो नाउ इट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर हैबिट्स ना, हाँ, अवेयरनेस तो बढ़ गई है अवेयरनेस आ बहुत ज्यादा। गई। हाँ वही कल आज जैसे इन्होंने बोला ना कि अगर आपने 24 डेज का ये प्रैक्टिस किया है तो दैट मीन्स यू हैव बिकम अलर्ट एंड अवेयर, और आज की प्रैक्टिस से आप और ज्यादा अलर्ट एंड अवेयर हो जाओगे, क्योंकि ना छोटी छोटी बात में अभी हमको वो मैजिक क्यों ढूंढना है ना? सही में थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच रानी मैम। या शीला मैम इज राइटिंग ग्रेटिट्यूड एवरी मॉर्निंग, थैंक यू। और ये कुछ पिंकी आप अनम्यूट करो,
And if you would like to share, Suniti ji, Pinky ji, please unmute and share whatever you are going through, whatever you're doing. आप लोग पहली बार कर रहे हो पिंकी मैजिक नहीं, मैंने पहले किया है। अच्छा, आपने से बात किया, राइट? वीडियोस ऑफ होता है तो हाँ। समझ में नहीं आता है। सो आपका कैसा चल रहा है हाँ अभी, कैसे चल रही हाँ, है? अच्छा चल रहा है। मैंने तो सॉन्ग ही बना लिया है। आई लिव इन ग्रेटिट्यूड, आई लव इन ग्रेटिट्यूड, कुकिंग करती हो तो आई कुक इन ग्रेटिट्यूड, पानी पीती हो तो आई ड्रिंक इन ग्रेटिट्यूड, खाती हो तो आई ईट इन ग्रेटिट्यूड। एक सॉन्ग ही बना लिया है मैंने तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ भी काम करती हो तो आई लिव इन ग्रेटिट्यूड, आई लव ग्रेटिट्यूड, कुछ भी करती हूँ मैं एक सॉन्ग ही गाती ही रहती हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और मैंने ये करने के बाद मुझे वो ट्रिपल नंबर बहुत दिखाई देते हैं, 111 222। या तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एंजल नंबर होते हैं। या तो वो दिखाई देते हैं तो ऐसा समझता है कि एंजल अपने साथ है, यूनिवर्स अपने को हेल्प कर रहा है, एंजल साथ में ही है, तो कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है उससे। बस वही है ना, वो इनका यही मैसेज हो सकता है कि यू आर सपोर्टेड एंड गाइडेड एवरी मोमेंट, सो डोंट वरी, आई एम देयर। हाँ यही मैसेज। हाँ। तो मैंने ये मैजिक चालू करने के बाद ही वैसा नंबर बहुत दिखा देता है मुझे, ट्रिपल नंबर बहुत दिखाई देते हैं मुझे। ओके, ग्रेट, हाँ, वेरी लवली, थैंक यू। थैंक यू। So, ठीक है friends, then shall we make a move now? And we will be meeting for the meditation tonight again 9:45 पे. So would look forward to seeing you all for the meditation. Okay. And bye for now. And thank you and love you all. Thank you.